and welcome to another webinar of Dr. O.P. Bhalla Foundation. The foundation was formed in 2014 in the memory of a founder, Dr. O.P. Bhalla, and to take his vision and legacy forward. The team of Manav Rachana Educational Institutions, the teachers and the students have been working tirelessly, passionately and persistently towards different objectives of this foundation. हमारी फाउंडेशन ने लगभग हर एरिया को टच किया है. हम बात करें हमारे अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स की, जैसे कि एक मुट्ठी दान, adoption of Mona village, adoption of Faridabad railway station, adoption of the old age homes, our responsibility towards the environment, mega tree plantation drives, safety of women, women empowerment, and many, many more such projects and initiatives. And ever since the lockdown began, we felt the need to connect with people even more. इन वेबिनार्स को स्टार्ट करने का इंटेंशन बहुत सिंपल था. हम अपने सोसाइटी के रियल लाइफ हीरोज को सामने लेकर आना चाहते थे, जिन लोगों ने अपने से ऊपर उठ के कुछ काम किया है. People who have gone beyond their own life and they have tried to make a difference to the life of everyone around them. इन वेबिनार्स को स्टार्ट करने का एक और बहुत इम्पोर्टेंट इंटेंशन था, और वो ये था कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए, जिनके बारे में हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए. और इस ऑब्जेक्टिव को भी हमने बहुत सक्सेसफुली अचीव किया है. We've had webinars where we have spoken on important issues like wellness of mind. We have been able to invite guests like Sneha Tanwar from Hapur village, who has single-handedly worked towards hygiene and health of women. We have been able to invite senior persons like Mr. Raju, who is a journalist with Hindustan Times, and his wife, Ms. Swati, who's also a journalist with Statesman. They have been working on projects like Saving the Dolphins with the Ganges and many, many more. And इसी के साथ हमारे को इस चीज़ की नीड फील होती है, because everyone has gone online. इंटरनेट आज एक बच्चे जो 2 साल का है उससे लेकर शायद हर एज ग्रुप के पास इस चीज़ का एक्सेस है. So इससे related बहुत से issues हैं. And today we felt the need to be talking on an important topic like cybercrime, and also educating and understanding people about safety of their own and safety of their loved ones. And इसी के लिए we have Mr. Amit Wankar here with us, who is an inspector with CBI with more than 12 years of experience in investigation and detection. He has been recognized consistently for performance excellence and contributions to success in CBI. His strengths are in special crimes like anti-corruption, suicide, rape, murder, and cases backed by training in cyber crime, bank fraud, money laundering, and investigation abroad. He has been handling some very delicate and important cases, and he has some exceptional understanding of issues related to cybercrime. And we felt that he would be an appropriate person to educate us all. But before we can go any further, I would request our Director General, Dr. N.C. Wadhwa, to please welcome everyone. Sir, please. Thanks, Ritika. Good afternoon to everybody. On behalf of Dr. O.P. Bhalla Foundation and on behalf of all the participants who are connected with us today, let me first of all extend a very hearty welcome to our guest of the day, Shri Amit Wankar ji. As Ritika has already shared with you, Amit Wankar ji CBI से संबंध रखते हैं. उनका जो स्पेशलाइजेशन है different जो crime connected with cyber and other important areas, उनकी इन लॉस के बारे और काफी केसों को हैंडल करने की जो बैकग्राउंड है, तजर्बा है, it will come handy to us because he will be throwing light on very important aspect of what are do's and don'ts for us when we are using ICT resources throughout the day. We all know that it's age of information technology. Right from morning till evening, we are using various ICT resources. Mobile hai, internet hai, laptop hai. During pandemic, we were lucky that this online system came handy to us.
when we were confined to our houses, classes band, daftar band, sari normal activity band. So we were all operating from our homes. But except some poorer sections of the society, those who did not have ICT resources, बाकी सब काफी हद तक सुख शांति से they were leading their normal lives. Whether we were asking for material from stores or essential items, or whether it was getting inputs for children through their schools on educational aspects, whether we were required to work in our organizations through online system, everything was almost done very successfully. But we realize that at times we are caught in difficult situations. Without our knowledge, some money is taken out from our, some fraud happens. There is a message on WhatsApp group, and without realizing its implications, we forward it to different persons in the group. And then the police comes knocking at our door and they say, you have committed this crime, you have indulged into spreading hatred, you have indulged into spreading of communal feelings, or so and so is caught. 2-3 days back, a boy, he was caught at Dharuheda while riding a bus. We came to know he was working in an organization surrounding Rewari, and he was passing information through his WhatsApp group to somebody in Pakistan. And there are at times crimes against women, कोई women की privacy से related है, leaking of data, leaking of information. अभी आप देखें जहां जितने लाभ हैं उतने नुकसान भी हैं. अभी आरोग्य सेतु, आप you can feel safe. You have to use this system and you come to know in your locality whether somebody is having COVID positive history, or how at what distance he is located from you. And if you met persons who are COVID positive affected, then how safe are you? 50%, 80%, or totally safe? All these things are being enabled through ICT resources. And this IT age is called fourth industrial revolution of the world. So if we are well aware about safeguards, if hacking of some account or some source or some portal does not take place, all these things are very useful. But if something goes wrong, then we are caught in a difficult situation. At times we are at the receiving end. So Mr. Amit Vangarji, because he has a lot of experience, expertise in this area, what are the safeguards? What are provisions of IT Act, Amala? Because when we are using these appliances from morning till evening, we should be very much aware. अभी पीछे देखा मुंबई में एक नेवी ऑफिसर, Mr. Madan Sharma, he just that gentleman and a veteran, उनको किसी में से कुछ वो आया, some cartoon, he passed it on to his friend circle. Some Gunda element came over there and gave him a thrashing, and the police registered a case against him. So all these things are enough indications for us to know in a foolproof way what is allowed, what is not allowed, what are do's, what are don'ts, and what are provisions of the Act, and how we should go on with it. At times when we are caught in a confusion, in a difficult situation, what is the remedy before, to whom we should make calls and have guiding inputs. So with these words, मैं फिर अमित जी का पुनः स्वागत करूंगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रार्थना को स्वीकार किया, वो आज हमारे साथ हैं. और क्योंकि हम एजुकेशनल संस्था से, हमारे फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स भरपूर
जो है मोबाइल का, लैपटॉप का और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनका सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि he will be throwing light on all relevant aspects. He will enlighten all of us so that we play safe and we remain secured and safe financially and from criminal aspects and from frauds and from other unwanted activities जो हमारे कई बार हमें पता नहीं होता we commit. So with these words, thanks to Amit ji and to all the participants for joining with this session today. And I will pass it on to Ritika to take the session forward. Thank you. Thank you, Dr. Wadhwa. And now, Mr. Amit, you have been patiently Yes. waiting. We were just yesterday going through some of the figures. इंटरनेट पे हम देख रहे थे 2018 में ही देखें तो इंडिया had close to 400 million internet users. And हम ये देखते हैं जैसा कि डॉक्टर वाधवा ने अभी मेंशन किया, लॉकडाउन के दौरान तो हमने देखा है कि यूजेज भी और इससे रिलेटेड केसेस भी दोनों ही चीजों में इंक्रीज रहा है. आज हम शॉपिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, गेमिंग है, फ्रेंडली डेटिंग वेबसाइट्स हैं, बहुत तरह के इश्यूज हैं जहाँ पर हम सुनते हैं अक्सर चीजें. सो आई थिंक आपका एक्सपीरियंस बहुत रिच है एंड आई वुड नाउ request you that in the recent times, since we understand people have a lot of access to it, what are the nature of problems that generally come on your desk in your office that you would like to share with us? Thank you, Ritika ma'am, and thank you, Vadhva sir. Actually, I was thinking how to explain cyber law or cyber related issues. In simple term, we can say, इसको हिंदी में हम लोग अगर समझे कि जो कुछ भी हम बाहर करने से डरते हैं या बाहर के लिए जो क्राइम है, सपोज करिए मैं किसी के घर में बिना किसी उसकी परमिशन के नहीं जा सकता, राइट? अगर मैं वहां से कोई चीज उठा के लाया, इफ आई टेक समथिंग आउट फ्रॉम विदाउट हिज कंसेंट, इट इज अ थेफ्ट. सिमिलरली यही चीज हमारा इस सिस्टम के साथ में है. Nowadays, we are using mobile, laptop, other electronic gadgets in which we keep our personal data. If someone is taking that data out of us without our consent from our device, whether it is mobile, whether it is our laptop, then it is a theft. It is a theft as per cyber law. So the same punishment means punishment which we get from other activities, outside activities. Similarly, we can get also the same punishment here. तो सिंपल टर्म में अगर हम समझे कि जो कुछ भी हमें बाहर लग रहा है कि क्राइम हो सकता है, अगर मैं बाहर जाके ईव टीजिंग करूं, इट्स अ क्राइम. सिमिलरली अगर मैं अपने फेसबुक आईडी के जरिए किसी को ऑब्सीन मैसेज भेजूं, किसी को वल्गर वर्ड्स बोलूं, इट्स अ क्राइम. Nowadays, youth must be very sensitive, very aware about these things, because out of curiosity sometimes we do, out of revenge sometimes we do, and later on when police knock our door, we regret that what happened and how did it happen, how to come out from this. So as per law, there is no ignorance. If you say I don't know the law, if I don't know this is a crime, there's no excuse. You will have to undergo legal process if you commit such type of things. So these are the things which means we should be simple principle we can adopt in our life. Whatever is crime outside, the same thing is crime with electronic gadgets which we are using. So first one is this identity theft. Easily हम लोग देखा होगा कि जब नया नया फेसबुक आया, हम लोग अपना आईडी तो बनाते हैं, साथ में किसी और के नाम से एक फेक आईडी भी बना लेते हैं. It is an identity theft. ये भी चोरी में है. मैंने किसी की फोटो लिया, किसी का नाम लिया और उसको बना के एक प्रोफाइल बना दिया और उसके बाद false friend ऐड करके now we are starting disturbing them. So it's also a crime. If someone complains against this IP address, इस Facebook ID से मेरे पे vulgar मैसेज आ रहे हैं, then we can easily be caught by the police, because nowadays we have tools, and with the help of those tools, easily it can be detected from which machine, from which mobile, from which laptop this message, this email or these Facebook ID have been created. आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज मेंशन की है यहाँ पर अमित जी.
ignorance to the law is no excuse. Right. आपके ऊपर जो भी आपके साथ होगा वो एज पर लॉ होगा, चाहे आप उसके आगे इनोसेंट उस टाइम प्ली करें या ना करें. एंड आई थिंक आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इस चीज को समझाया है कि जो चीज एक बाहर एक तरह से एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो चाहे कोई आपकी इंफॉर्मेशन के बिना आपका ईमेल एक्सेस करता है या आपकी फोटोग्राफ्स को रोटेट करता है या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आपसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, इट इज ऑल illegal, it is all under criminal offense. Right. And I think that is a very... One more thing I would like to add, that in cyber world, nothing is personal. Everything is in public domain. We have this illusion that there are safeties or there are safeguards, we are password protected, but hackers, they have access to everything. Similarly, cyber police, they also have access to your personal data. In case of need, if it is required, they can access through proper channel. So we should not have this illusion that we are nobody is seeing us. Everybody can see you whenever we are connected with internet. So we must be very aware while surfing the internet or while surfing the contents, what contents we are watching. So we should not be in illusion that nobody is watching, we can watch anything. Yes. Especially I am talking about in terms of pornographic materials, which nowadays youths are very much addicted. So all, whether it is youth or adult or old, we must be aware that we are under surveillance every time. So this is very important aspect. Absolutely. Because sitting in our houses, कई बार लोग घर के बाहर कई बार सर हिम्मत नहीं करते, लेकिन अपने कमरे की चार दीवारी में कई बार खाली बैठे दिमाग जब एक्स्ट्रा चलता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हो और आपको लगता है nobody will come to know. But I think वो एक हमारी गलतफहमी है. And at any point of time, the case can be reported against the person. इसी बात को थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हुए सर, अगर आप हमें थोड़ा इन्फॉर्म करें कि किस किस तरह की एक्टिविटीज हैं which actually fall under the purview of criminal offense. See, common thing is defamation. जैसे कि अभी हमने मुंबई में देखा एक नेवी ऑफिसर के साथ मारपीट हुई है, तो उसमें सिंपली एक कार्टून फॉरवर्ड किया था एंड दैट कार्टून वाज रिलेटेड टू सम पॉलिटिकल लीडर इन महाराष्ट्र. तो इट कम्स अंडर डिफेमेशन कि हमने किसी का जो है कार्टून बना के और उसका दैट पर्सन मस्ट हैव रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एंड इफ वी आर डिफेमिंग हिम, इट इज अ बेसिक काइंड ऑफ ऑफेंस. साइबर डिफेमेशन means we are defaming someone by using electronic media. It is also an offense. This is one thing. Second is I have already told you, identity theft. If I am using the identity of some other person, some other organization, suppose I am not in CBI, and if I use that CBI identity and send emails to other persons to get some business, to get some money, it is identity theft. It is also a cyber offense and it can be penalized. A person can be penalized under cyber laws. This thing. Third one is, as we have discussed, cyber pornography. In India, watching pornography is not a crime, but circulating obscene material or pornographic material with the help of this cyber, what we can say, world through electronic gadgets, it's a crime. It's an offense. If anybody complains, we can be booked under cyber laws, IT Act law. So the law which deals with this cyber crimes is Information Technology Act 2000. There is also amendment in 2008 by which certain recent things were amended in this act. तो सारी चीजें जो है IT Act के तहत आपके हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है अगर हम कोई गलत काम करते हैं इसके हिसाब से. Fourth one is, हम लोग देखते हैं जनरली CDs इस्तेमाल करते हैं, मूवीज आती है उसकी पायरेटेड CD बनाई, we use that thing. It is also a crime. हम कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, that is also a crime. Either we should have authorized license of that or we should not use it. If we are using, and the cyber police or the organization whose software we are using, if they complain, we can be booked under this act. These are the things. In cyber stalking means if I am harassing somebody, I am harassing, demanding money, this is extortion, cyber extortion or cyber stalking, and it is also a crime under IT Act.
So these are some crimes, and as earlier I have told in the beginning, whatever is crime, generally the same thing can be applied here. Absolutely. हम कुछ और भी चीजें सुनते हैं, जैसे आजकल हम मतलब मुझे पर्सनली भी शायद इसके इतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जब हम स्कूल काफी पेरेंट्स ने भी ज्वाइन किया है हमें और हमें लाइव फेसबुक से भी सुन रहे हैं, कई बार बहुत से बच्चे होते हैं लोगों के घर में छोटे, आजकल टीनेजर्स हैं सबके घर में, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कई बार जो ऑनलाइन स्टडीज हैं बच्चों के हाथ में इंटरनेट गया, लैपटॉप गया, आईपैड गया, और उसके बाद वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं हमें कई बार नहीं एहसास रहता। ये जो चीज मतलब बच्चों को भी आई थिंक इस चीज को एजुकेट करना जरूरी है, जितनी ये गेम्स हैं, जितने कई बार वो चैलेंजेस बच्चों पे थ्रो करते हैं, कितने सुसाइड केसेस हैं, कितने जाने जा चुकी हैं इन चीजों को लेकर। तो इस पर आप प्लीज थोड़ा सा गौर करें, क्या इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं हो सकता इन तरह की वेबसाइट्स के ऊपर कि ये हो ही ना, एग्जिस्ट ना करें? It is not possible because cyber world means it is just like saying that बाहर crime हो ही ना, हम ऐसा करें कि murder ना हो, rape ना हो, और we can live in crime free country, crime free world. It is not possible because it is a human mind. If we create law, they create some other substitute, some other way to commit a crime. So it goes parallelly, means there are criminals, there are police. So it is not possible. The main thing is we have to be cautious. We have to be very careful while using these things, these gadgets. So using internet is a double-edged sword. It can kill us and it can kill others also. And out of curiosity, what happens? Out of curiosity, youth get involved in such type of things. कोई मैसेज आया, उसमें अट्रैक्टिव चीज है कि दोस्त बनाए। आजकल बहुत मैसेज आते हैं, काफी टाइम से हमारे पास भी आते हैं कि अगर आप फ्री हैं तो दोस्त बनाए। एक एसएमएस आएगा, उसमें एक लिंक दिया रहेगा। तो यूथ जो खासकर फ्री है या हॉस्टल में रह रहा है, पेरेंट्स से दूर है, वो उस पर क्लिक करेगा। या जो एम्प्लॉइज भी हैं, जो वर्किंग हैं और अलोन है, दे विल क्लिक ऑन दैट लिंक एंड दे आर टेकन समवेयर एल्स। वहां उनका डेटा हैक हो सकता है, उनके पासवर्ड हैक हो सकते हैं। और अगर हैक नहीं हुए इनिशियली, then some other person will contact from them. It may be honey trap kind of a thing. A girl from other side may call, and then they can start conversation, and then some personal things can be shared, information can be exchanged, and later on the person can be blackmailed. So this is the thing. Second is we receive emails nowadays कि भाई आपके जो है ये लॉटरी लगी है और आपका 10 लाख की लॉटरी लगी है, अगर आप ये पैसा चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रीड। फर्स्ट वाज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, सेकंड वन इज आउट ऑफ ग्रीड। हम लोग बिना कुछ किए लालच में कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं। तो मैंने ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा है, दे फेल विक्टिम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो मेल आया, आप इतना रिवार्ड जीते हैं, आपका इतना है, आपके अकाउंट में पैसे डालना है, आप हमसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट किया, द पर्सन विल गिव अस एन अकाउंट नंबर की वो कस्टम ड्यूटी लग रही है, आपको 25,000 50,000 पहले डिपॉजिट करना पड़ेंगे हमारे अकाउंट में, तब हम आपके अकाउंट में ये 50 लाख से 10 लाख डाल देंगे। पर्सन डिपॉजिट कर देता है, उसके बाद कंप्लेन करता है पुलिस के पास, हम लोगों के पास, कि सर वो ऐसा ऐसा हो गया है, उन्होंने पैसे ले लिए हैं और अब वो ना फोन उठा रहे हैं ना कुछ हो रहा है और हमारे पैसे फंस गए हैं। Or who is to blame? It is we have to, means we were not vigilant, we were greedy. Out of doing anything, without doing anything, we want to get money. Yes. So this greed, we have to keep watch on our greed. कहीं हम लालच में तो नहीं फंस रहे हैं। जी। These are very common things by which we can be trapped. Absolutely. by the hackers. जी, कई बार क्यूरियोसिटी है, कई बार ग्रीड है, कई बार रिवेंज है, कई बार any kind of extreme step which is taken is generally it is not correct, and everybody who's listening today should understand that there are legal implications of any activity of this nature. So I think we all have to be mindful. Unknown mails, जो messages आते हैं, we should not, out of curiosity, we should simply delete them. And I think forward करते समय तो हमें content को और भी ज़्यादा careful रहना चाहिए. So yes, that is something very interesting that you have shared. इस तरह के अंदर ऐसे जो cases होते हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, like I just told you, इसके अंदर बहुत से psychological aspects भी होते हैं। चाहे कोई बच्चा है 5 साल का, तो चाहे बहुत छोटा है, से 10 year onwards बच्चे से कुछ हो जाए तो अक्सर हम देखते हैं कि इंसान डर जाता है,
वो इस चीज को लेकर सामने नहीं आता और छोटी जो बात है वो करते 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 और बड़ी होती जाती है। स्पेशली अगर हम वल्नरेबल लोगों की बात करें, बच्चे, विमेन स्पेशली, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अंदर ही अंदर चलती रहती हैं। हम देखते हैं कि इंसान के बिहेवियर में बदलाव भी आता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इस तरह की इश्यूज को जहाँ लोग डर जाते हैं, स्पेशली आउट ऑफ द स्फीयर ऑफ द सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इसको लिए आप क्या समझाना चाहेंगे जो लोग हमको सुन रहे हैं? आई एम रिकॉर्डेड अ सॉन्ग, वो एक गाना आपने सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो स्पेशली यूथ, स्पेशली यंग पर्सन, यंग जनरेशन, दे शुड रिमेंबर दिस थिंग कि अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है रिलेटेड टू दिस साइबर ऑफेंस, या हम कहीं गलत लिंक पे क्लिक कर देते हैं, कोई गलत चीज देख लेते हैं या सर्कुलेट कर देते हैं, इमीडिएटली वी शुड इन्फॉर्म टू आवर पेरेंट्स विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि हम अगर किसी चीज को छुपाएंगे तो वो चीज उल्टी बढ़ती जाएगी एंड वन डे द होल फैमिली विल बी इन प्रॉब्लम। So first, and parents should also keep watch on the activities of children. अगर आप पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा अकेले में रहना ज्यादा पसंद कर रहा है मोबाइल के साथ, इट्स मीन समथिंग इज फिशी। वो पब्लिक में मोबाइल क्यों नहीं दिख रहा है? So ये parents कुछ should be, इंडिकेशंस हैं। yeah, these are the indication. Parents, nowadays what happens if husband and wife both are working, nobody is there to look after the growing up children. Now easily they fall victim of such type of things. So parents should just focus what is more important for us, money or the future of our children. Parents, if parents spend more time with them, with the young generation, why would they fall prey of such type of things? If we have friendly relation between parents and children, then definitely they will share everything. Yes. बट आई थिंक जैसे कि आपने बोला, इंटरनेट एक तरह से डबल एज स्वॉर्ड है। ये ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट भी एक तरह से दो तरफा रिश्ता होता है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर बच्चा बताना चाहे भी तो देयर इज सो मच ऑफ मेलोड्रामा दैट कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स। हाय तुमने कैसे कर दिया, वो एक्सट्रीम रिएक्शन जो होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों से डर जाते हैं। दे डोंट वांट टू कन्फाइड इन देयर पेरेंट्स एनीमोर बिकॉज द रिएक्शंस आर सो स्ट्रांग। सो आई थिंक जहाँ तक बच्चों को अपने पेरेंट्स पे कन्फाइड करना चाहिए, आई थिंक दोनों को कुछ कदम साथ बढ़ाना चाहिए टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। बिकॉज कहीं ना कहीं हर इंसान जो इस समय हमारे साथ लॉकड इन है, हमसे सुन रहा है, किसी ने कहीं के लाइफ में कुछ तो फेस डेफिनेटली किया है, जहाँ पे फिर तुम बोलते हो चलो छोड़ो जाने दो, लेट्स वेट। But I think it's important to come out in the open and deal with these kind of issues. Right. And especially for the parents role I think is very vital in preventive crimes. Yes. If parents are friendly, if parents are aware, if they are giving more time with the children, definitely the crime rate will decrease, whether it is cyber crime or traditional crime. Yes. Yes. Right? Because you know, I have two daughters and we are very friendly with them. So what happens, everything they share with us. But sometimes what happens, suppose I am returning from office and I am tired, they are sharing something, I get irritated. So it creates distance among us. So that's why we have to be sensitive that children are growing, they are very sensitive in nature, they easily take offense, जल्दी बुरा मान जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और वो चीजों को छुपाना चालू कर देते हैं। फिर वो एक फ्रेंड ढूंढते हैं जिससे वो सारी बात कर पाए, और अगर वो फ्रेंड सही नहीं मिला तो निश्चित मानिए कि हमारे बच्चे का करियर या फ्यूचर डिस्ट्रॉय होने वाला है। And अक्सर जो आपने भी बोला ये होता है। Right. In more than 50% of the cases, जिस इंसान में हम confide करते हैं वो trustworthy होता ही नहीं है। Right. और वो हम गलत और फंसते चले जाते हैं उस चीज को लेकर। इसलिए पेरेंट्स से ज्यादा ट्रस्टवर्दी कोई नहीं हो सकता है आज की लाइफ में। तो अगर पेरेंट्स और हमारा रिलेशन अच्छा है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ बेनिफिट, not only in the preventive crime like suicide cases. You have told suicide cases are increasing day by day, whether it is youth, whether it is adult, they are committing suicide. Why? Because they don't find somebody with them they can live peacefully. They find this world कि यार दुनिया बेकार है, सब धोखेबाज हैं, कोई किसी का नहीं होता, and like this they feel such type of thing and they try to leave this world. So not only prevented this cyber crime, if we want to prevent all kinds of crime, as you have earlier told that ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया crime free हो जाए. Yes, it can happen if parents take responsibility
अगर कोई रास्ते में लड़की को छेड़ता है तो कोई लड़का ही होगा ना किसी का बेटा होगा, है ना। तो अगर उसके पेरेंट्स उसको प्रॉपरली गाइड कर देते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बता देते कि यार ये क्राइम है, अगर मान लीजिए लड़की ने कंप्लेन कर दी, यू कैन बी बुक्ड, आपका कैरियर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सब स्पॉइल हो जाएगा, और उसको कुछ मोरल वैल्यूज डाल देते हैं, वो ये रिस्पेक्ट कर पाता है कि यस आउटसाइड जो गर्ल है वो भी किसी की बेटी बहन है, तो ये क्राइम ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएंगे। So I think what the point जो आप निकालने की बताने की कोशिश कर रहे हैं, that is that we all are at the same time responsible for our safety also. We all have to be mindful at all times with the kind of things we are doing. अभी तो हम सिर्फ बच्चों की बात करें जो पेरेंट्स पे डिपेंड कर सकते हैं. हम जब एक बार बड़े हो जाते हैं and we don't really have anybody to fall back on, we are responsible to understand. We have to be careful before we trust people, before we trust anything online. चाहे वो हमारी कोई भी तरह का पर्सनल डेटा हो, इसके बारे में जो बहुत अवेयरनेस भी बीच में आई थी कि अपनी पर्सनल चीजों को आप अपने इस वेब पोर्टल पे डालना बंद कर दें, बिकॉज कब कौन कहाँ उसे मिसयूज करे यू कैन नेवर टेल. Either you should be confident enough कि मैं जो डाल रहा हूँ अगर कोई इसको पर्सनली यूज भी करता है, there should not be any harm to me. If you are confident, then you can post it. Yesterday an incident happened to me. I received a friend request on my Facebook account from a girl from London, UK. I was surprised that I don't know anybody in London and how can I receive friend request. So I simply started chatting with that person, and while doing chatting she told me that I don't use Facebook much, kindly contact me on my email ID. Right. So I it's am a banker. trap. Yeah, I am a banker, kindly contact me on my email ID. So I told her that before going further in the interaction, let us have a video chat so that we can see each other and we can be confident you are the genuine person to whom I am talking. I made a video call, but nobody received the call. So I understood that it's a fake or it's a trap. Similarly, we should also use these techniques. अगर कोई फोन करता है, कोई व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजता है, सॉरी फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजता है, तो हमें पहले उसको श्योर हो जाना चाहिए whether the person is genuine or not. गर्ल्स को बॉयज बन के रिक्वेस्ट भेजी जाती है और बॉयज को गर्ल्स बन के रिक्वेस्ट भेजी जाती है. इट्स अ हनी ट्रैप. तो ये हमारे यूथ में आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है. जनरली they feel lonely and they want some chit chat and fun. Such type of things happen and they usually fell trap. Right. And हमारे मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम व्हाट्सएप पर भी और हर तरफ से, जहाँ पे पेरेंट्स अगेन इस चीज के बारे में लिख रहे हैं कि अक्सर ये जो आजकल बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए हैं, देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर इन चीजों को लेकर. सो आई थिंक जब तक आई थिंक व्हाट द पेरेंट इज वेरी स्ट्रेस्ड ओवर हियर कि उनका बच्चा सारा दिन अगर टीनेज बच्चा है वो सारा दिन फोन पर है, how to break that cycle जहाँ पर वो already addicted है. So I think यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे? Right. We should discuss things with our children. बच्चे अगर WhatsApp ग्रुप बना रहे हैं उसमें engage हैं, we should have open discussion with them. What are the benefits by making such groups? What are you learning from this? Whether you are wasting time or not, whether it is going to help in making your future, in making your career. We should not simply scold our children. क्या तुमने इतने सारे ग्रुप बना लिए, तुम बिजी रहते हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो. जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं उनसे स्कॉल्डिंग वे में, अथॉरिटेटिव वे में, तो उनका ईगो हर्ट होता है. जैसे हमारा ईगो हर्ट होता है ना, हमें बुरा लगता है, सिमिलरली उनका ईगो भी हर्ट होता है और वो उस चीज को और करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं. दे बिकम अग्रेसिव. मम्मी ने मना किया, पापा ने मना किया, अब तो मैं करूंगा, सामने नहीं करूंगा तो अलग जाके करूंगा. आपने देखो कई ऐसे बच्चे हैं जो मतलब बिफोर गोइंग टू कॉलेज उनके पेरेंट्स उनको काफी दबा के रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं पढ़ने, वेदर इट इज गर्ल और बॉय, बाहर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी पिंजरे से फ्री हो गए हो. नाउ दे बिकम व्हाट वी कैन से ट्रैप्ड इजीली. हॉस्टल लाइफ में जाके उन्हें मौका नहीं लगा था घर में डिस्कशन करने का चीजों का. कोई भी उनके आसपास क्लासमेट, रूममेट इजीली उनको भटका सकता है वल्गर चीजों में, ड्रिंक्स में, इंटॉक्सिकेशन में. लाइक वी आर हैविंग दैट केस इन मुंबई, जहाँ पे आप देख रहे हैं कितने ड्रग सिंडिकेट सब यूथ्स ही हैं. दे आर स्ट्रगलिंग, एक्टर एक्ट्रेसेस, दे आर कमिंग, दे आर इंटॉक्सिकेटेड, दे आर एडिक्टेड ऑफ ड्रग्स. So why is it happening? Because somewhere there is what we can say no guidance, no actually real love in life, whether it is parent and between parents and children or between friends. It is, this ingredient is missing.
in cyber crime also, what we have observed during the what we can say scrutiny of cases and analysis of incidents, this basic ingredient is missing. जी, so I think यहाँ पर आपने बहुत important बात कही, जो कि सारे guests जो हमें इस टाइम सुन रहे हैं live Facebook से and even through this medium, it is important to have real life relationships. It is Definitely. important to have a fulfilling life where you have maybe 2 or 3 people to depend on in real life, rather than having those 500 or 5,000 people on Facebook or followers. They are not going to come and help you. That sense of appreciation and sense of validity or validation that that we feel that people are appreciating us online, that gets addictive, but that is not real. So Right. the lack of real love and respect in life, I think, is one of the major concerns here. But sir, अगर घर बैठा इंसान है, वो कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मैं घर बैठे अपनी इस कंप्लेन को आगे कैसे कर सकता हूँ, तो क्या इसके लिए कोई तरीका है? Yes, Indian government has launched a website, और उस वेबसाइट पे साइबर क्राइम, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू रजिस्टर ऑनलाइन कंप्लेन, यू विल हैव अ गवर्नमेंट वेबसाइट cybercrime.gov.in. वहाँ पे आप अपनी कंप्लेन इजीली ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. देयर आर ऑप्शंस ऑल्सो, आप एनोनिमस कंप्लेन कर सकते हैं, बिना नाम बताए कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम पब्लिकली ना हो तो आप एनोनिमस कंप्लेन कर सकते हैं. और if you want to register complaint by name, you can also register by name. You can give your full details. So these complaints are basically investigated by the concerned law enforcement agencies, maybe police, maybe CBI, maybe cyber cell. So depending on the intensity of the crime. Yes. So easily, I mean, nowadays it is available. Or we have cyber cells in different districts also. आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का एक cyber cell मिलेगा आपको, अगर आप Google पे सर्च करेंगे. In your city, you can find cyber cell. You can directly visit there, can make complaint against these offenses if. Right. So basically, बात जो है बहुत ही simple है. That सबसे पहले तो जो भी हम content view करते हैं, हमें उसे थोड़ी responsibility उस चीज को view करना है. जो हम चीजें अपनी वेब पर डालते हैं, we have to be more mindful about it. लेकिन अगर जाने अनजाने कुछ हो भी जाए, तो rather than being scared, I think you have to take up the matter. उसके बाद I have some suggestions. Please. पहली चीज, हम अपने पासवर्ड जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, whether it is laptop, mobile or any gadget, we should have password for that. और जब हम जाके छोड़ के जाते हैं उस डिवाइस को, सपोज आई एम गोइंग टू वॉशरूम, हमारा लैपटॉप ऐसे ही ओपन है, anybody can misuse from my laptop. Yes. If my email is open, and false email can be spread from my device. So we should lock the device and then leave the place. First thing we have to do this thing. लेकिन जब हम किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करें, whether it is especially बैंक वेबसाइट, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो हमें वहां देखना चाहिए कि हमारा इसमें जो ऊपर सिक्योर है नहीं है, HTTPS करके आएगा. तो इफ यू वांट, आई कैन शो यू सम वेबसाइट कैसे लोगों को उल्लू बनाया जाता है. एक्सिस बैंक की फास्ट वेबसाइट करके लिंक दे दिया जाएगा, आपको उस पर मैसेज क्लिक करना है एंड पता चला आपकी पेमेंट फास्ट जगह पे हो गई है. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो हमें पासवर्ड रखना है, जब हम छोड़ के जाएं तो डिवाइस को लॉक करके जाएं, अनसेफ साइट्स को विजिट नहीं करना है. दीज आर द फ्यू प्रिकॉशंस व्हिच वी कैन टेक. जी, इससे पहले कि आप अपनी प्रेजेंटेशन रन करें, आई डू हैव समबडी फ्रॉम माय टीम आल्सो चेकिंग कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी फेक फेसबुक आईडी बना दी जाती है. उस केस में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन माने जाएं, ताकि कल को कोई हमें ये ना बोले आपने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? What should be the first step? As soon as we come to know that somebody has created a fake ID of false ID, you can post a message in your what we can say Facebook ID from your original Facebook ID. Yes. कि किसी ने मेरी fake ID बना ली है और वो इसका misuse कर सकता है. Kindly मेरी यही original Facebook ID, इसके अलावा कोई Facebook ID नहीं है. आप उसमें friend request अगर कोई भेजता है या कोई मैसेज भेजता है, आप उसको एक्सेप्ट ना करें. पहली चीज आप ये कर सकते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. दूसरा कई बार क्या होता है कि मेरे साथ ही हुआ है कि किसी ने मेरे फ्रेंड लिस्ट में किसी की फेक आईडी बनाई, उसके बाद मैसेज किया कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, दिल्ली में हूँ, और मेरे फ्रेंड की बड़ी सीरियस हालत है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसको पैसे चाहिए, काइंडली मुझे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए. मैंने पूछा कैसे ट्रांसफर करें, तो कह रहा कि गूगल पे कर दीजिए, पेटीएम पे कर दीजिए. तो मैंने वो पेटीएम का नंबर देखा और ट्रू कॉलर पे सर्च किया, वो नंबर किसी राजस्थान में शॉपकीपर का दिखा रहा था वो.
और जो उसने फोटो शेयर की, मैंने उसको बताया कि मैं भी दिल्ली में ही हूँ और जिस हॉस्पिटल की तुम बात कर रहे हो वहाँ के उससे बात करवाओ, तो वो डर गया फिर वो। जी शुड बी अवेयर अबाउट सच टाइप थिंग्स। पहली चीज तो हम ये कर सकते हैं कि अपने फेसबुक वॉल पे इसको पोस्ट कर दें। जी दूसरा, आप अपने ऑनलाइन जो साइबर बताया मैंने, cyber.gov.in, इस पे जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं कि somebody has created my fake ID। फेसबुक पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं इसका। दीज आर द वेज। जी। पर अक्सर लोगों को ये थोड़ा एप्रीहेंशन जरूर रहता है कि अगर उन्होंने एक बार इस वेबसाइट पे कंप्लेन कर दी तो क्या घर पे आ जाएंगे पुलिस के लोग या सीबीआई के लोग और आपको मतलब सवाल जवाब करने लगेंगे। एक कॉमन माइंडसेट यही है, जो कंसर्न्स मेरे पास अभी व्हाट्सएप पर आ रहे हैं वो यही है कि उसके देखिए, बाद क्या होता है। मैं जब सीबीआई में नहीं था, बिफोर ज्वाइनिंग सीबीआई, मेरा भी यही एटीट्यूड था कि मुझे पुलिस से और एडवोकेट से दूर रहना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड आई डिडंट हैव एनी नॉलेज neither about पुलिस डिपार्टमेंट नॉर अबाउट लीगल डिपार्टमेंट। और इसका नॉलेज ना होने से हमारा ज़्यादा मिसयूज उठाया जा सकता है। जी इवन पुलिस डिपार्टमेंट कैन मिसयूज अस, इवन लीगल डिपार्टमेंट कैन मिसयूज अस। एक लॉयर का कॉल आया आपके पास में कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है, हम कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं। तो अगर आपको लीगल बैकग्राउंड की नॉलेज नहीं है तो इजीली आप उससे डील कर लेंगे, आप उसको पैसा दे देंगे, ये हो जाएगा। So it is my request to all the participants who are participating that they should start gathering information about police, about legal system. We must be aware about how to deal with these things. So it is very easy. आप easily website पे आप search कर सकते हैं कैसा क्या होता है। तो अगर कोई complaint पे हमारी action लेता है, we should be happy. अगर एक्चुअली पूछता है भाई किसने किया, कब किया, किस IP एड्रेस से आया, क्योंकि IP एड्रेस आपके मोबाइल में दिखेगा उसको। जी अगर कुछ ऐसा होता है then you must cooperate to the investigating agency, whether it is police, cyber cell, so that the real culprit can be booked। और यही वजह है कि हम कंप्लेन करने के बाद पीछे हट जाते हैं, तो जो क्रिमिनल्स हैं उनके हौसले बुलंद रहते हैं। एक्चुअली राइट। जैसे कि एक बच्चे की शायद मदर है या बच्चा है जो हमसे इस टाइम पूछना चाह रहा है कि अगर हम जैसे एक कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर उन्होंने यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियो बच्चे ने डाल दी, गलती से डाल दी। होता है कि बच्चे कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, पेरेंट्स फील वेरी प्राउड और उसको जाकर फेसबुक और यूट्यूब में जाके पोस्ट करते हैं एंड देन समबडी ट्राई टू कनेक्ट विद देम एंड दे ट्राई टू थ्रेटन देम। ये जो थ्रेटन करने वाला इशू है इस पर आप थोड़ा गौर करें कि किस तरह से हम इशूज को टैकल कर सकते हैं कि कोई आपको किसी भी तरीके से डराने की कोशिश करे या थ्रेटन करने की कोशिश करे। देखिए, नॉर्मल तरीके में क्या होता है, अगर हम रोड पे जा रहे हैं और किसी से गाड़ी टकराई भी नहीं है, फिर भी कोई आके बोले कि भाई आपने टक्कर मार दी है, मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, या तो आप मुझे इतने पैसे दीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। ये भी एक डराना हो गया। जी इसमें हम क्या करते हैं, या तो डर के उसको पैसे देते हैं या हम बोलते हैं कि हमने कुछ क्राइम ही नहीं किया, आप पुलिस में कंप्लेंट कर दो, जो होगा देखा जाएगा, लाइक दिस। सिमिलरली, इफ सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई हमें इलेक्ट्रॉनिकली धमका रहा है, वी शुड टेक स्क्रीनशॉट, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वीडियो के जरिए धमका रहा है, उस वीडियो को सेव रखें। ऑडियो के जरिए है तो उस ऑडियो को सेव रखें। व्हाट्सएप पे कोई कॉल आ रही है, उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव रखें ताकि उस नंबर क्लियरली विजिबल हो, टाइम विजिबल हो, कब आपको ब्लैकमेल किया गया, कब आपको थ्रेट किया गया, एंड देन यू कैन फाइल अ कंप्लेंट। यस अगर आपको लगता है कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, देन यू कैन गो। अगर आपको लगता है इग्नोर कर सकते हैं, देन इग्नोरेंस कर सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, छोटी बड़ी चीजों में हर कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल करना नहीं चाहता, एक्चुअली दे वांट टू इन्वॉल्व इनटू लीगल मैटर। यस। अगर आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, लाइक दिस थिंग। सर इससे आगे चलते हुए व्हाट आर द लॉज व्हिच आर एप्लीकेबल एंड व्हाट आर द एसोसिएटेड पनिशमेंट्स दैट वन पीपल शुड बी अवेयर ऑफ। Yes, मतलब अलग-अलग केसेस में अलग-अलग चीजें होंगी। the same thing I would like to show through the slides. श्योर प्लीज सर। Maybe जहाँ हम लॉज की बात कर रहे हैं, यू लाइक टू शेयर दैट स्लाइड। Yes, yes, yes. So these are the some definitions. Cyber crime. So any criminal activities which is done with the help of electronic device, it may be computer, internet, cyberspace, World Wide Web, it's a cyber crime. Cyber security means protecting information, equipment, devices, computers, sources,
is personal information. Whatever measures we take, it comes under cyber security. We create password, we encrypt the files, right? We just what we can say put digital signatures. These all are the security measures which we take to secure our data, our personal information. Then cyber law. If a crime is committed, then law comes into the picture. And Yes. that cyber law is Information Technology Act. Basically, it was promulgated in 2000, and it was amended in 2008. Yes. This is the law which deals with cyber crimes. So it is no more fun. Youngsters must pay attention. It is no more fun. Cyber team or cyber cell is very much empowered with the latest technology to detect anything. मैं चाहूँ कि मैं अपने WhatsApp ग्रुप से किसी को भी मैसेज भेज दूँ और बच जाऊँ, नहीं, it is not possible. So we must be very alert about this. We should not post any material in any group or in public places like Facebook, wall, etc. Otherwise, things can go worse. So these earlier we have discussed the crime of cyber type of crime, cyber stalking. इसमें वही थ्रेट, जैसे आपने बताया कि कोई मुझे वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए, इंटरनेट के जरिए धमका रहा है और हैरेस कर रहा है, इट इज साइबर स्टॉकिंग. सेक्सुअल हैरेसमेंट, साइबर हमारे कोई किसी ने ऑप्शन वीडियो बना लिया है एंड देन हैरेस कर रहा है, इट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. ऑनलाइन बैंकिंग केसेस इसमें होते हैं. जनरली आपने देखा होगा कि किसी ने हमारे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लिया अपने अकाउंट में. साइबर क्रेडिट कार्ड जो होता है वो उसकी भी क्रेडिट कार्ड की भी क्लोनिंग करके क्राइम हो जाता है. दैट इज ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड केसेस. साइबर फ्रॉड होते हैं हमारी आइडेंटिटी चुरा ली या हमारा सोर्स कोड चुरा लिया. ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट है. मैं आईसीआईसी बैंक का मैनेजर नहीं हूं, लेकिन एक फेक वेबसाइट बना के कस्टमर से अप्रोच कर रहा हूं कि भाई आपका जो पिन है, एटीएम कार्ड है, वो ब्लॉक कर दिया गया है. आप अगर उसको रीएक्टिवेट करना चाहें तो आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना डिटेल दे दीजिए. जैसे ही हमने उस लिंक पे क्लिक किया तो क्या होगा, वहां पे वो डेटा बैंक के पास नहीं जा रहा है, वो उसके पर्सनल पर्सन के पास जा रहा है, हैकर के पास जा रहा है. And that can be misused easily. So these are the common laws. Cyber pornography, we all know what pornography is. फिर भी इसमें definition दी है कि anything vulgar we post with the help of computer or internet that comes into this crime. What are the sections? Section 67, punishment for publishing or transmitting obscene material. इसमें punishment होता है आपका 2 से लेकर 10 साल तक. It is very severe punishment. और फाइन भी हो सकता है up to 10 lakhs. So we all must be very aware about this कि हमने गलती से कोई ऑब्सीन मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया या फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, किसी को पर्सनल मैसेंजर कर दिया है, we can be booked under this law and we can get punishment up to 2 to 10 years. ये examples हैं. अभी the CEO of a software company in Pune was arrested for sending obscene materials, emails to a former employee. तो इस तरह से अननोइंगली नोइंगली हम लोग पर्सनल रिवेंज में ये गलतियां कर देते हैं. दूसरा एक स्टूडेंट है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल न्यू दिल्ली का, उसको लोग चुराते थे स्कूल में क्लास में. तो उसने क्या किया, एक फेक वेबसाइट बनाई होस्ट पे जाके और अपने टीचर्स के और क्लासमेट्स के गर्ल्स के फोटो अपलोड करना स्टार्ट कर दिए मॉफ करके. ही वाज आल्सो बुक्ड, ही वाज आल्सो अरेस्टेड. जनरल सिक्योरिटीज है, हम लोग जो देख सकते हैं कि जनरल सिक्योरिटी क्या क्या है. पासवर्ड होना चाहिए, हमारा इंक्रिप्शन होना चाहिए, सेफ ब्राउजिंग होना चाहिए, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो हमारे सिस्टम में रहते हैं वो अपडेटेड होना चाहिए. पायरेटेड नहीं हो कि ओरिजिनल हो और वो अपडेटेड हो. जैसे विंडो फायरवॉल वगैरह होता है, इट मस्ट बी अपडेटेड. तो जो अटैक्स और थ्रेट्स होते हैं उनका, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पाईवेयर, किसी के पेन ड्राइव हम लेके डेटा ट्रांसफर करते हैं, वी मस्ट बी वेरी विजिलेंट अबाउट दैट. वो पेन ड्राइव में वायरस हो सकता है, इंटेंशनली उसमें वायरस डाल के आपके सिस्टम को हैक किया सकता है. सो वी मस्ट बी वेरी अवेयर अबाउट दैट. तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है. यस यस डेफिनेटली. सपोज करिए आपके ऑफिस में कोई आपका एम्प्लॉय क्रिमिनल माइंडेड है, ही वांट टू चीट यू. अकाउंट सेक्शन में है, वो आपके स्टूडेंट्स का डेटा लेना चाहता है कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं. वो किसी कॉम्पिटिटिव कॉलेज को या इंस्टीट्यूशन को भेज देगा वो कि ये स्टूडेंट्स हैं ये. तो इन दिस वे सच टाइप ऑफ थेफ्ट्स आल्सो हैपन. तो पेन ड्राइव में भी इस तरह की प्रोविजंस होती हैं कि आप हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता. पता भी नहीं चलेगा. ओह, दिस इज सीरियस. तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या करना है. जी जी. लीगल एक्सपेक्ट पे हम लोग आते हैं. जी. ये देखिए, ये एक वेबसाइट है एक्सिस बैंक की.
तो हमें जो ऊपर देखना है, ये लिखा है HTTPS। अगर एस है देन इट मीन सिक्योर एनक्रिप्टेड वेबसाइट है, और अगर एस नहीं है तो वी मस्ट बी केयरफुल कि ये फेक वेबसाइट हो सकती है, हमारा डेटा फेक जगह पे जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का एक कॉमन सिनेरियो है, अमेरिकन नेशनल है जिसका नाम है हेवुड। तो वहां पे इंटरनेट कनेक्शन को हैक कर लिया। जैसे हम लोग आजकल फ्री वाईफाई मिलता है ना, जी ये मैं बताना भूल गया था, फ्री वाईफाई स्टेशन पे या कहीं भी होता है, वहां हमें काफी अवेयर रहना चाहिए। जी Must avoid using free Wi-Fi system. It can access all our personal data, our passwords, bank password, etc., PIN, etc. अक्सर लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह फ्री इंटरनेट मिल गया, एयरपोर्ट पे मिल गया या फिर कहीं बैठे मिल गया, हम खुश होते हैं कि चलो फ्री मिल गया, बट इट्स नॉट सेफ। राइट। हम लोगों ने अर्लियर डिस्कशन किया ना कि हमारी जो ग्रीड है वो भी हमें ट्रैप में डाल देती है। राइट। एक हो गया फियर, दूसरा है ग्रीड। ये ईमेल स्पूफिंग होती है, इट इज ऑल्सो अ क्राइम। A spoofed email is one that appears to originate from one source but actually has been sent from other source. ऐसा लगेगा कि आपके इंस्टीट्यूशन से मेरे पास मेल आया है, लेकिन आप वो एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है, वो कहीं और से आया है, तो उसको ईमेल स्पूफिंग बोलते हैं। इट इज अ क्राइम अंडर आईटी एक्ट एंड सेक्शन 66A 66C, these all are penalty of crimes. तो उसमें है whoever fraudulently or dishonestly make use of electronic signature, password or any other unique identification feature of any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to ₹1 lakh. तो हम किसी का पासवर्ड चुरा लेते हैं ना सिंपल, और उसका यूज करके कोई क्राइम कर दें, तो ये भी क्राइम है। हम लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या होता है, की लॉगर डाउनलोड कर लेते हैं। की लॉगर यानी मैं जो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ वो उसमें सब एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि मैंने क्या क्या टाइप किया है, और हमारे सिस्टम को कोई और यूज करता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी सिंपली वांट टू चेक हाँ ये की लॉगर ने सही किया नहीं किया, तो उसका हमने ईमेल पे पासवर्ड डाला जो हमारे की लॉगर में आया, एंड नाउ वी कमिटेड क्राइम। उस पर्सन को पता चल गया यार कहीं और से हमारा जो ईमेल हैक हुआ है, इफ ही कंप्लेन्स देन वी आर इनटू ट्रबल, इट्स अ क्राइम। ये ईमेल स्पूफिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये देखिए, ये लग रहा है एक्सिस बैंक का, इस तरह का मेल आता है, अटेंशन योर एक्सिस ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट हैज बीन वायलेटेड। तो इस तरह से आएगा, आप डर जाएंगे अरे मैंने तो कुछ किया नहीं। तो वो लेगा, अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया वो अपने पर्सनल उस पर ले जाएगा, बैंक की वेबसाइट में नहीं ले जाएगा। वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। ये देखिए सेम आईसीआईसी बैंक का भी है। ये सब लाइव केसेस थे जिनको डील करके इस तरह से चीजें निकाली जाती हैं। ये देखिए, इसमें आपका सारा मांग रहा है, एटीएम पिन नंबर भी मांग रहा है, अकाउंट नंबर, नॉमिनी नेम, सारी डिटेल मांग रहा है। जब एटीएम पिन चला गया, एटीएम नंबर चला गया, तो कार्ड क्लोन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नेटिक कार्ड, प्लास्टिक कार्ड बना के आपके एटीएम पे यूज करके आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ये आईसीआईसी बैंक। नाइजीरियन मेल्स स्कैम भी काफी फेमस रहा है। इसमें वहां नाइजीरिया का जो लोग हैं वो मेल करते हैं, सिंपली चीटिंग टैक्टिक्स हैं ये सारी। प्राइवेसी का जो है लिमिट एक्सपोजर, हम अपनी फेसबुक पे भी देखें तो हमारी क्या क्या चीजें पब्लिकली व्यू है वो हम चेक कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि केवल हमारी प्रोफाइल फोटो दिखे, हमारे नेटिव प्लेस की इंफॉर्मेशन ना दिखे, हमारी डेट ऑफ बर्थ ना दिखे, हमारा मोबाइल नंबर ना दिखे, पब्लिक ना हो। उसको हम सिक्योरिटी पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो न्यू कमर्स हैं वो फेसबुक पे सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं उसकी जियो टैगिंग कर देते हैं। इट मींस एनी क्रिमिनल कैन ट्रैक अस। यहाँ ये अभी यहाँ है, फैमिली में अभी घर पे नहीं है, ये अभी मार्केट में जो है शॉपिंग कर रहा है, इस मॉल में है, तो चल के इसके घर पे चोरी करते हैं। सो इन दिस वे वी कैन बिकम विक्टिम लाइक दिस। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हमने बताया कि अगर हम किसी की सॉफ्टवेयर को बिना उसकी परमिशन के यूज करते हैं, जैसे MS ऑफिस है, पायरेटेड यूज करते हैं, इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम। We must be aware, we should use original softwares, we must not use free softwares or pirated softwares. Cyber defamation we have already discussed, किसी को हम इमेज लेके उसको डिफेम करते हैं, कार्टून बना के डिफेम करते हैं, that person can sue us into the court. कई बार देखा होगा कि पब्लिकली किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पर केस लगा देते हैं कि इसने हमें डिफेम किया है,
Similarly, with the help of the cyber, what we can say, a computer and electronic gadgets, we can defame somebody and we can be booked into that case. ये अभिषेक है, एक illustration है. A teenage student was arrested by the Thane police. Same case, एक गर्ल की कंप्लेंट पे कि उसकी इमेज मॉर्फ करके सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल दिया और लड़की ने कंप्लेंट कर दी, बुक हो गया. अब इसमें क्या हुआ, उसकी एज कम है. Out of curiosity or out of revenge, he committed crime. Now his whole career will be spoiled. He will not be able to join any government because of FIR against his name. So adult or adolescents must be very aware about this thing, very sensitive. So these are the crimes which we have discussed: stalking, bullying, installing keyloggers, cyber terrorism. This is a new kind of thing. अभी आपने सुना होगा कि ISIS जो है, अफगानिस्तान की terrorist organization, he is recruiting Indians. It is recruiting Indians with the help of cyber technology. Facebook पे ऐड कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं WhatsApp, ताकि वो एंटी इंडिया स्लोगन्स जनरेट कर सकें, इंडिया में रॉयट्स क्रिएट कर सकें. जो यूथ है वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के हो, दे मस्ट बी वेरी अवेयर. They must not fall victim of these cyber terrorism. कई पढ़े लिखे इंजीनियर स्टूडेंट्स दे बिकम ट्रैप्ड ऑफ दिस साइबर टेररिज्म. केरल से बहुत सारे लोग इसमें सामने आ रहे हैं जो विक्टिम बन गए हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है. दे आर स्टूडेंट, इंजीनियर स्टूडेंट्स. ऑनलाइन गैम्बलिंग वी हैव आल्सो डिस्कस्ड. वो एक मैसेज आएगा अमेजन पे या उस पे कि आपके अकाउंट में 1500 रुपीज क्रेडिट कर दिए गए हैं, आप गेम खेल सकते हैं. इन दिस वे वी फेल ट्रैप, वी फेल विक्टिम ऑफ दैट थिंग. तो फ्री कुछ नहीं है इंटरनेट पे, ध्यान रखिएगा. ना इंटरनेट पे ना बाहर. वी मस्ट बी वेरी अवेयर. जब भी कोई फ्री चीज ऑफर की जाती है, वी मस्ट बी अवेयर, वी मस्ट बी कॉशियस अबाउट दैट थिंग. पासवर्ड हमें काफी संभाल के रखना है. सिंपल पासवर्ड नहीं बनाना है. हम लोग जनरली क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ बना लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ या अपने फ्रेंड का नेम या अपना नेम. वी मस्ट अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. सो ऑल दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर. तो लॉ सिंपल है, इसको लॉ को सिंपल उसमें समझें. Thank you for sharing these important slides with us. अमित जी, जैसा कि आपने शुरू से बोल रहे हैं, most of these crimes जो intentionally या unintentionally होता है, इसके पीछे ज्यादातर क्यूरियोसिटी है, ग्रीड है, रिवेंज है. ये कुछ चीजें हैं जिससे हम शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं जाने अनजाने कई बार बहुत आगे तक चले जाते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी माइंडफुल, टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल. जैसा कि आपने बोला, कुछ भी फ्री नहीं है. एंड अपना एक बार प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है. ऑनलाइन चैनल्स पर जो आपने बैंक की स्लाइड्स दिखाई है वो तो बहुत जेन्युइन लगती है. कोई सच में मानेगा एक्सिस से, ICICI से ये एक स्क्रीनशॉट आया है एंड वो आप इंसान एक्चुअली डर जाते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, और फिर एक ट्रैप शुरू होता है और जिसके अंदर आप इमीडिएटली फॉल कर जाते हैं. तो अक्सर ऐसा कई बार फेसबुक पे देते हैं, फूड कंपनीज हैं, कुछ फ्री ऑफर्स दे रही हैं, इस पे क्लिक करो फिर ये वाउचर मिलेगा. देयर सो मच हैपनिंग. तो उस पे आई थिंक हम सबको बहुत माइंडफुल रहना चाहिए. जहाँ तक बात आती है रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन, वी शुड डेफिनेटली नॉट ट्राई टू डिफेम समबडी इन एनी वे. चाहे किसी की पिक्चर्स को सर्कुलेट करना हो या किसी के अकाउंट से पिक्चर्स निकालनी हो. I think there are better ways to deal with things rather than getting to these kind of measures, क्योंकि ये कहीं ना कहीं criminal offense में आती है. So, but जैसा कि हमने बीच में आपने बोला भी था that children have to be a little more careful because वो एक बहुत ही ज़्यादा vulnerable stage में होते हैं. 10 साल से 11 साल onwards से लेके जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते. हालांकि हर इंसान equally vulnerable. हमारे देश के बुजुर्ग हैं वो are not tech savvy, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर उनके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं बिकॉज वो बहुत ही इनोसेंटली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं. तो आज जो इंसान भी एक्सेस पे है वो आई थिंक वो उतना ही वल्नरेबल है. आई वुड नॉट यूज एनी अदर वर्ड, वीक और समथिंग. वल्नरेबल है. सो वी नीड टू बी केयरफुल. हमें बहुत अच्छा लगा, एक मैसेज आ रहा है मेरे पास व्हाट्सएप पे जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये तरीका ठीक है, अगर कोई आपको कॉन्टैक्ट करता है कि पैसे चाहिए या मदद है, फोन कर लो एटलीस्ट. अगर आपका इतना अच्छा दोस्त है तो फोन नंबर तो होगा, वो आपको मैसेज नहीं करेगा फेसबुक पर इस तरह से. सो आई थिंक दीस आर सम वेरी वैल्यूएबल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड. इट्स अ सिंपल फंडा. अगर आपको चेक करना है कि मैं किसी क्राइम में तो नहीं पड़ रहा हूँ, इट इज वेरी सिंपल प्रिंसिपल विच इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस.
कि अगर कोई भी काम करने से आपको डर लग रहा है या आपको छुपा कर करना पड़ रहा है, कोई देख ना ले, तो समझ जाइए कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाले हैं। किसी भी काम में अगर आपको लग रहा है कि मैं छुपा के करना करूंगा या कोई देख ना ले या मुझे अंदर से डर वाली फीलिंग आ रही है, इट इज दीज आर द इंडिकेशन। तो वो यूथ जो हमारे साथ हैं वो समझ जाए इस चीज पे कि अपने आप पे नजर रखना बहुत जरूरी है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। क्या मेरे माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे अकेले में करना है? क्या मेरे माइंड में कुछ डर वाली फीलिंग आ रही है कि अगर कोई देख ले, अगर मैं पकड़ा गया? तो अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि मैं मेरा माइंड मुझे गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। उसके बारे में हमें किसी से डिस्कस करना चाहिए। पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकते हैं, स्कूल में कोई टीचर भी हो सकते हैं। आप जिसको भी आप समझे कि हाँ इससे मैं शेयर कर सकता हूँ, यू शुड शेयर दैट थिंग, ताकि आप उसमें गहराई में जाने से बच जाएं और वो क्राइम आपसे ना हो पाए। जी। सर, हालांकि हम जानते हैं कि जहाँ पर हम लीगल अथॉरिटीज की बात करते हैं वहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हुआ करता, लेकिन अगर इंसान को फिर भी कोई डाउट हो या वो कुछ पूछना चाहता है, कुछ क्लैरिफाई करना चाहता है, तो क्या कोई ऐसी साइबर क्राइम से रिलेटेड हेल्पलाइंस हैं जहाँ पे इंसान फोन करके कुछ पूछ सके? यस, आप जो मैंने वेबसाइट बताई है cybercrime.gov.in, वहाँ हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। वहाँ सिंपल 100 नंबर तो पुलिस का ऑल ओवर इंडिया का है, और वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी है 181, उस पर भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और आप आजकल गूगल अवेलेबल है, इजीली यू कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन एनीवेयर। एंड वन मोर थिंग, जीपीएस के बारे में हम लोगों ने सुना होगा। जी सर, जी। तो जीपीएस हमें बाहर की लोकेशन बताता है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे पहुंचना है। सिमिलरली वी शुड आल्सो एक्टिवेट जीपीएस इनसाइड अस, जिसको हम विवेक बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो जब आप उसको इंक्रीमेट कर देते हैं कि इनर जीपीएस अगर आपका एक्टिवेट है, तो आपका माइंड को वो गाइड कर देगा कि माइंड भटक तो नहीं रहा, चेक कर लेगा। तो ये सारे क्राइम, वेदर इट इज ट्रेडिशनल क्राइम और साइबर क्राइम, इसको हम करने से बच सकते हैं, अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। I think Amit ji, and you'll be one of those very few officers in the country जो कि एक बहुत ही डेलिकेट प्रोफाइल जैसा कि साइबर क्राइम है उसको डील करने के साथ ही साथ 20 साल से ऊपर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हैं, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, हार्टफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स यू वेरी डिफरेंट। एंड वी फेल दैट आप एक बहुत अप्रोप्रिएट चॉइस रहेंगे जहाँ पर एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो हमें गाइड भी कर सके और हम हमारे डाउट्स को भी क्लियर कर सके कि किस तरह से लीगल इम्प्लीकेशंस हर चीज में होती है। और इंसान को डरना नहीं चाहिए, चीजों को रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे पेरेंट्स को। आजकल स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, हेल्पलाइंस हैं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग फीलिंग सेक्लूडेड कुछ गलत हो जाने के बाद, बेटर टू शेयर इट विद पीपल। that is much better. The most important thing that we should start sharing with ourselves. Actually देखा होगा कि हम लोग गैजेट्स में इतने बिजी रहते हैं, we don't give time to ourselves. जी। हार्टफुलनेस मेडिटेशन से मैंने जो सीखा है वही सीखा है, जब मैं शाम को जाके घर पे बैठता हूँ, आफ्टर क्लोजिंग माई आईज फॉर फ्यू मिनट्स, मेरा माइंड मुझे याद दिलाता है कि आज मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। ठीक है, तो माइंड इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, वो आपको गाइड कर रहा है, लेकिन हम उसको सुनेंगे नहीं। So it is very important. External guide होना चाहिए, it is quite required, but internal guide को एक्टिवेट करने के लिए मेरा हमेशा रहेगा कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है। हो सकता है जिसको हमने गाइड माना हो, he can misguide us. We have so many spiritual guru, so called gurus, जिन्होंने आज सोसाइटी का नाम बदनाम कर रखा है। लोग गुरु बनाने से डरते हैं, you might have aware recent cases. तो we must activate that inner guide, और उसके लिए आप बाहर से इंफॉर्मेशन लें, उसके साथ साथ आपको इंटरनल जो सोर्स है लाइफ का, इसको हम सुप्रीम पावर बोल दें, डिवाइन पावर बोल दें, गॉड बोल दें, वी शुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद दैट गाइड. दैट गाइड इज गोइंग टू हेल्प अस 24 आवर्स बेसिकली यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब इस हर चीज को थोड़ा और माइंडफुली अगर हम एनालाइज करेंगे तो ये जो क्राइम्स हैं ये अपने आप में कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। चाहे फिर वो हमारी जो एक्सट्रीम फीलिंग्स हैं, क्यूरियोसिटी की, आइडलनेस, ग्रीड, रिवेंज, एक्सट्रीम जो भी हम स्टेप उठाते हैं शायद हम नहीं उठाएंगे। और अगर हम उठाते हैं, सब इस बात का ध्यान रखिए कि हर चीज पर, हर गलत काम पर नजर है और उस पर लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। छुपा कुछ भी नहीं है, ना आपका किए हरकत और ना आपसे कोई जाने जानी हुई गलती। सो इट इज बेटर टू बी माइंडफुल, सेफ रहें। एंड वी आर लकी टू हैव यू अमित जी। आई एम श्योर अगर हमारे बच्चों को कुछ आगे चलकर पूछना होगा
तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपना टाइम जरूर निकाल के हमारी हेल्प करें, क्योंकि वन मोर सजेशन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि बाय चांस अगर लगता है कुछ क्राइम हो भी गया, एक गलती हो भी गई, वी मस्ट एक्सेप्ट इट, वी मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव आवर वेज। मान लीजिए किसी ने नहीं देखा लेकिन मुझे तो पता है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, जी हमें वहाँ क्या अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। That is one of my suggestion. Thank you very much. Thank you for sharing these wise words with us, because जब हम साइबर क्राइम का बात सुनते हैं तो हमको कई बार ऐसा लगता है हमारे साथ नहीं हो सकता, नहीं हमारे किसी लड़के के साथ भी नहीं हो सकता, बट वल्नरेबल हम सब इक्वली हैं. So we should all be very aware, very mindful and responsible. And इसी के साथ मैं आपका थैंक यू भी कहना चाहूँगी, and I would request our Director General, Mr. Vadva, to please say a few words, because sir is also very rich in his experience of life and during his, as he was serving as an IAS officer and the Vice Chancellor and now the Director General of Manav Rachna Educational Institutions. Dr. Vadva, please. Thanks, Ritika. On behalf of Dr. O.P. Bhalla Foundation, on behalf of all the participants, and on my own, I would like to extend hearty thanks, gratitude to Amit ji. He is a person on high moral ground. He is a spiritual personality, and he has really sensitized all of us on various aspects of cyber crime. The moral of the story is, whatever is crime as per Indian Penal Code or as per our traditional spiritual world is naturally a crime under IT Act also. And as he has rightly said कि जब मन ना माने और ये लगे कि मैं कुछ ये ठीक नहीं है, तो that is the जो है ना वही लक्ष्मण रेखा है. और आज के जो यूथ हैं वो वही चकाचौंध में इधर उधर में और वो कि भाई स्मार्ट हैं. As he rightly said, they should never carry this impression कि I am doing in a room in my house or at some place and nobody is seeing me and I have created a duplicate ID, Facebook ID, and I can do this, I can do that. As he rightly said, कि cyber police or cyber agencies के पास तो they are observing each and every such thing. और लाइफ में कुछ ethical standards, moral standards होने चाहिए. और he had proper advice for parents also. जितने भी busy हों, उनकी जो पूंजी है उनकी बच्चे हैं, उनके वो बच्चों को संस्कार दें, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ जैसे ना उन्होंने राइटली कहा कि बच्चों के साथ डिस्कस करें कि बच्चे सारा दिन हम देखते हैं, आप देखते हैं, छोटे किड से लेकर बड़े बड़े तक सारा दिन मोबाइल में बिजी हैं, वो हैं, ये हैं. We should try to open them and try to cross check कि वो गलत रूट पे तो नहीं है. This is how, yes. और फ्रॉड जो बड़े बड़े आप देखें, कहते हैं कि वर्ल्ड की जीडीपी का 1% फाइनेंशियल फ्रॉड्स में हर साल खत्म हो जाता है. मतलब वही है, चाहे नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, एक के बाद एक लोग फ्रॉड करे जा रहे हैं. तो हमें चुस्ती और केयरफुलनेस की जरूरत है. IT gadgets, of course, they are a boon for everybody, but at the same time बड़े रिस्की हैं, तो वो safeguards प्लस लॉस की जानकारी होना जरूरी है. और हमने जाने अनजाने को गलती हो गई तो तुरंत में क्राइम की इंटेंसिटी 0 हो जाती है. We report to the concerned agency, we take help, we take counseling. I agree with Ritika जी, ये तो हमारे बड़े रिच रिसोर्स हैं. He is a big guide and he is a real human being on high moral ground. तो when हमें जरूरत पड़े तो इनको when we open up कभी एक सेशन, फिजिकल सेशन में भी जब अपने यूथ को ऑडिटोरियम में कई बार वो कराते हैं, I will desire that you arrange a physical session between Amit ji and our young students, क्योंकि उस समय ओपन टू हाउस क्वेश्चंस होते हैं और आईटी के बच्चों का बड़ा रुख है. आज भी मैं देख रहा था, अच्छी गैदरिंग
पहुंची थी। तो पुनः आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से मैं अमित जी का अत्यंत थैंक यू वेरी मच, शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे, मैं भी कई चीजों में इन स्पाइट ऑफ माय रिच ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड, just out of lethargy, I did not go into different sections of IT Act, but relevant आपने आज वो कर दिए. Now I will go detail into all those relevant sections. और जैसे आपने अच्छा इन्हें अलर्ट किया, 2 साल से 8 साल 10 साल सजा और 10 लाख तक का जुर्माना, और ये हमारे बुद्धू कई बार ये रूटीन में उल्टे सीधे इस प्रकार के मॉर्फ वो बना के या पोर्नोग्राफी इधर उधर, दे थिंक ये तो मजे की बात है, जॉकिंग है, कुछ नहीं होता. And if punishment is such stringent punishment, there are such serious provision, naturally कोई कंप्लेनेंट, कोई लड़की खड़ी हो जाए, कुछ हो जाए, तो देन वो उनका फ्यूचर गया, उनका कैरियर गया, डिग्री बेस्ड ना कहीं जॉब मिल सकती है, एक स्टिग्मा हुआ, you lose everything in life. So it is a great awakening for all of us, and thanks to Amit ji, all the best. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर वाला, आपने बहुत ही सब कुछ समअप किया है अच्छे से. एंड अमित जी, वंस अगेन आपने अपना टाइम निकाला एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सब कुछ समझाया. आपके टाइम के लिए और आपकी सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बिग थैंक यू फ्रॉम एवरीवन. Thank you very much. Thank you. Thanks, and we are really grateful. Thank you, sir. Thank you. With that, we have come to the end of this webinar, and I would like to thank all the guests on behalf of the Foundation and senior functionaries of Manav Rachna Educational Institutions for joining us. We are going to continue with these webinars, talk about important issues, bring the real life heroes in front of you every 15 days. So thank you very much. Thanks.